Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will be having our 10th lecture, that is again about the Board of Directors. Before we start our today's lecture, let's have a quick review about our last lecture. In last lecture, we have studied about the board legal duties that normally the law in many countries they don't require a board of directors for the firms, लेकिन जो स्टेट की रिक्वायरमेंट होती है वो ये है कि हर एक कंपनी का अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो. Firms profitability and increase in share value. Main function of a board is to increase the firm profitability, and they should work for the share value and for its increase. Another function of a board is that they must be loyal and fair. कि जब तक आपका बोर्ड लॉयल और फेयर नहीं होगा, जिसमें आपके independent directors as well as dependent directors. Dear students, we can use different boards for such directors. For example, independent directors, outside directors, ये एक ही directors के नाम हैं. On the other side, we have inside directors और डिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ये भी एक डायरेक्टर्स के नाम है. सो अनदर मेन ड्यूटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज दैट दे मस्ट बी लॉयल एंड फेयर. अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं सो ही मस्ट बी लॉयल टुवर्ड द फर्म, टुवर्ड द बोर्ड, बिकॉज अगर वो फेयर और लॉयल नहीं होगा सो ऑब्वियसली वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा. प्लस उसकी अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपनी ड्यूटी सही दें. एंड सेम इज द केस विद द डिपेंडेंट डायरेक्टर्स, कि जितनी भी डिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं और इनसाइड डायरेक्टर्स हैं, either from the management sides or from the shareholders side, so they must have to play their role toward the board. कि हर एक डायरेक्टर को बोर्ड के बारे में सोचना चाहिए, कंपनी के बारे में सोचना चाहिए. if they are focusing toward their personal interests, so obviously company डूब सकती है, and obviously they all will lose their jobs. Another topic that we discuss, that the board must take care of the rule of ethics, in which we discussed some employment practices, human rights, environmental regulations, corruptions, moral obligations. कि business ethics means the principles of right and wrong while doing your business, जिसमें ये 5 चीज़ें आती हैं नॉर्मली. सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इनका भी ख्याल रखना चाहिए कि कंपनी जो बिजनेस एथिक्स हैं उसको फॉलो कर रहा है या नहीं. आइदर द कंपनी इज प्लेइंग देयर रोल टुवर्ड द एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस as well as human rights, environmental regulations, corruptions, and the moral obligations.
we have discussed this in detail in our last lecture. Then we discussed about some board committees, जिसमें normally you will see such committees in every board. But dear students, maybe कि आपको कुछ बोर्ड में और कमिटीज भी नजर आए. So we have discussed in detail that the committees, the number of committees differs from firm to firm, from business to business. जो बिजनेस स्ट्रक्चर होता है, जिस किस्म की कंपनी होती है, सो अकॉर्डिंग टू दैट structure the company maintain their board committees. Suppose अगर एक technical firm है, so obviously they will be having some technical sort of committees in their board, and if it's a non-technical firm or company, so maybe you will see some sort of non-technical committees in the board. But normally these are some of the committees जो आपको हर एक बोर्ड में नज़र आती हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था एग्जीक्यूटिव कमेटी, फाइनेंस कमेटी, पब्लिक रिलेशंस कमेटी. देन वी डिस्कस बोर्ड सब कमेटीज, जिसमें ऑडिट कमेटी आती है, कंपनसेशन एंड नॉमिनेशन कमेटी. So dear students, this was the review of our last lecture. Let's have a quick review of our today's lecture. Today we will discuss about the director's importance in the history. कि हिस्ट्री में डायरेक्टर्स को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, बट जितना आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता गया, सो द बोर्ड मेन फोकस डाइवर्ट टुवर्ड द डायरेक्टर्स. आहिस्ता आहिस्ता कंपनीज ने डायरेक्टर्स को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दी, उनको ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना शुरू कर दी. नाउ देन वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज नॉर्मली कॉल्ड अ गुड बोर्ड, कि एक अच्छा बोर्ड क्या होता है. वी विल डिस्कस कि उसमें एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स हों, नंबर 1. नंबर 2, हैविंग डिफरेंट बैकग्राउंड्स, experienced persons or members or directors, as well as they must have some sort of different backgrounds, that is technical as well as non-technical directors. Another point is that the board must be independent board. Independent in a sense कि board किसी के pressure में ना आए. And for that reason, normally the board, they keep some sort of known inside directors or independent directors. Independent directors का मेन मकसद कंपनी में यही होता है कि कंपनी का बोर्ड इंडिपेंडेंट बोर्ड हो, ताकि जो भी डिसीजन हो वो फेयर हो और कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में हो. बट द प्रॉब्लम इज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, बिकॉज जितनी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में हाई लेवल के जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं या ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सो नॉर्मली दे ऑल नो ईच अदर. कंपनी का डायरेक्टर वो दूसरी कंपनी के डायरेक्टर्स को जानते हैं, और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इफ दे आर इलेक्टेड और सेलेक्टेड फॉर द कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप्स, सो नॉर्मली जो कंपनी का सीईओ होता है उसकी उसके साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एन एब्सोल्यूट independent directors
for the firm board. Another point toward the good board is that normally the perception is that the board must be having small number of directors or small board. Then we discuss that good for gender, ये एक मुहावरा है जिसका मतलब ये है कि एक चीज़ जो एक के लिए अच्छी होती है हो सकता है वो दूसरे के लिए भी अच्छी हो. इस मुहावरे का मतलब ये है. सो द नॉर्मल परसेप्शन इज दैट कि अगर एक छोटा बोर्ड एक कंपनी में है, so normally that small board will be fruitful for some other firms. Yeah, if suppose there is a large board, so वही large board दूसरी firm के लिए भी fruitful होगा. But normally we cannot see such sort of cases. It differs from company to company and from business to business. So small board may not be good for other firms and vice versa. Can good board lead to a better firm performance? Another thing is today we will discuss कि suppose अगर आपको अच्छा board मिल भी जाता है, so is it compulsory कि आपकी company या फर्म की परफॉर्मेंस उससे अच्छी होगी? So, उसका जवाब ये है that normally there is not a direct relationship between the good board and firm performance. Normally आपको कभी कभार एक छोटा बोर्ड या नया बोर्ड कंपनी को मिलता है, लेकिन because of many reasons, जिसमें एक रीज़न ये है कि दे मस्ट बी वेरी एंथुजियास्टिक, मस्ट बी वेरी कीन टुवर्ड द कंपनी. सो वो कंपनी के लिए मेहनत करती है और एक छोटा बोर्ड कंपनी को बहुत ऊपर ले जा सकती है. एंड समटाइम्स वी हैव सीन कि डिफरेंट डायरेक्टर्स होते हैं, एक्सपर्टीज उनके पास होती है, काफ़ी क्वालिफाइड डायरेक्टर्स होते हैं एक बोर्ड में, लेकिन कंपनी की वो परफॉर्मेंस नहीं होती. सो नॉर्मली वी कैन नॉट स्ट्रिक्टली से दैट अ गुड बोर्ड कैन लीड द फर्म परफॉर्मेंस और इट कैन इंक्रीज द फर्म परफॉर्मेंस. So normally board are reactive, not proactive. Sometimes inside directors are good for board. For example, infant or new firm or when the firm has to make any huge financial investment decisions, and sometimes outside directors, for example, when audit as well as compensation matters are required for the firm. In the last we will discuss some potential problems with today's board कि आज कल पूरी दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं, वो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. सो the first point is today that more attention on directors. Prior to the mid 1980s, the public paid little heed to directors. कि 1980s से पहले कंपनीज के डायरेक्टर्स पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी, कंपनी के डायरेक्टर को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती. बस बराए नाम एक बोर्ड होता जिसमें मुख्तलिफ डायरेक्टर्स होते हैं, एंड द मेन जो फोकस और जो प्रेशर होता था वो मैनेजमेंट साइड पे होता था.
बोर्ड का काम यह होता था कि they were there just to supervise the management team. So वो मैनेजमेंट को प्रेशराइज करते थे कि दे शुड वर्क हार्ड फॉर द कंपनी प्रॉफिट एंड फॉर द इंक्रीज इन शेयर प्राइस एटसेट्रा एंड एटसेट्रा. लेकिन नाउ द सिचुएशन हैज चेंज्ड. लेकिन 1980s के बाद कंपनीज ने ये रियलाइज किया कि इट्स नॉट जस्ट द मैनेजमेंट कि वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम करेगी. देयर इज अनदर सेक्टर दैट इज द डायरेक्टर्स. हमें उस पर भी फोकस करना चाहिए, उनको भी ड्यूटीज देनी चाहिए, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी चाहिए ताकि वो भी कंपनी के प्रॉफिट और कंपनी की ग्रोथ के लिए काम कर सकें. So now the situation has changed now. So with the passage of time जो डायरेक्टर्स की इम्पोर्टेंस है वो बढ़ रही है, डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही है, डायरेक्टर्स की ड्यूटीज बढ़ रही है. So increased pressure on board of directors has resulted in better corporate governance. जब डायरेक्टर्स पे इतना प्रेशर नहीं था और सारा प्रेशर मैनेजमेंट पे था तो ऑब्वियसली देयर वाज अ प्रेशर ऑन द मैनेजमेंट. सो जो कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द ओनर्स वो काफ़ी ज़्यादा था. बिकॉज मैनेजमेंट कहती थी कि सारा काम हम कर रहे हैं and so that's how they were in conflict with each other. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब डायरेक्टर्स की इम्पोर्टेंस बढ़ गई with the passage of time, so that reduces the conflict between the directors and the management, which obviously reduces the tussle between the owners or the company इन्वेस्टर्स एंड द मैनेजमेंट. सो जो गवर्नेंस इश्यूज थे वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुए बिकॉज ऑफ द गिविंग इंटरेस्ट, बिकॉज ऑफ द गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द डायरेक्टर्स. द इंक्रीज्ड टेक ओवर मार्केट एंड द न्यू रेगुलेशंस, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट पुश द डायरेक्टर्स to do their jobs. पास्ट में जब कंपनीज की टेक ओवर होना शुरू हुई, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द मर्जर एंड टेक ओवर्स ऑफ कंपनीज इन फ्यूचर लेक्चर्स. लेकिन वेरी ब्रीफली जब एक कंपनी छोटी होती है या एक कंपनी ठीक काम नहीं करती, सो उसके जो इन्वेस्टर्स या बोर्ड होता है उसको वो दूसरी कंपनीज को इनवाइट करते हैं कि आके आप हमारी कंपनी को टेक ओवर कर ले या खरीद लें. सो पास्ट में चूंकि सारा प्रेशर मैनेजमेंट पे था, बोर्ड और डायरेक्टर्स का इतना काम नहीं था, सो उससे क्या होते थे, जो गवर्नेंस इश्यूज रेज होते थे, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द ओनर्स. मैनेजमेंट भी काम नहीं करती थी, कंपनी सही वर्किंग कंडीशन में नहीं होती थी. सो व्हाट हैपेंड देन कि जो इन्वेस्टर्स होते थे उनके पास दूसरी कोई ऑप्शन नहीं होती, एंड दे सिंपली आस्क्ड अदर मेजर कंपनीज टू कम एंड टेक ओवर देयर कंपनी. उनकी कंपनी को आप खरीद लें, इससे क्या होगा कि उस कंपनी की पोजीशन भी ठीक होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो जब पास्ट में कंपनीज, बड़ी कंपनीज ने छोटी कंपनीज को टेक ओवर करना शुरू किया, उनको खरीदना शुरू किया, सो दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस कि बोर्ड ने अपने डायरेक्टर्स को फोकस करना शुरू किया. सो दैट हैज रिड्यूसेस द रेशो और द परसेंटेज ऑफ टेक ओवर्स आफ्टर 1980s. कि 80s के बाद जब बोर्ड अपना काम करना शुरू किया, मैनेजमेंट ने अपना काम करना शुरू किया, इनके दरमियान टसल्स खत्म हुए,
कंपनी ने ग्रो करना शुरू किया, सो ऑब्वियसली देयर इज नो क्वेश्चन टू आस्क सम अदर कंपनीज टू कम एंड टेक ओवर योर कंपनी. Now the question is what is good board? कि अच्छा बोर्ड क्या होता है? So in this regard, the first point is that a good board must have some experienced members. कि जितना आपके पास एक डाइवर्सिफाइड या एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स होंगे बोर्ड में, आपका बोर्ड उतना अच्छा काम करेगा. So we have discussed कि बोर्ड में मुख्तलिफ डायरेक्टर्स होते हैं, इसमें इंडिपेंडेंट एज वेल एज डिपेंडेंट डायरेक्टर्स. सो बोर्ड का काम ये है कि अगर उसने डिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी हायर करने हैं, इफ इट्स फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड और द शेयर होल्डर साइड, तो उनका एक्सपीरियंस भी कंसिडर करना चाहिए फॉर द डिपेंडेंट डायरेक्टरशिप ऑफ द बोर्ड. लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू टेक केयर ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हु आर कमिंग इनटू योर बोर्ड. अगर कुछ एप्लीकेशंस आई हैं कंपनी में, तो कंपनी को बजाय इसके कि एक बंदे के पास इतना वास्ट एक्सपीरियंस नहीं है या उसके पास सिर्फ एक ही फील्ड का एक्सपीरियंस है, सो कंपनी को ऐसे डायरेक्टर्स को अवॉइड करना चाहिए टू गेट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप इन द बोर्ड. सो कंपनीज को ऐसे डायरेक्टर्स को इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप देनी चाहिए कि जिनके पास मुख्तलिफ फील्ड का एक्सपीरियंस हो, जिसमें अगर इफ इट्स पॉसिबल इफ ही हैज द एक्सपीरियंस इन द टेक्निकल साइड्स और द नॉन टेक्निकल साइड्स, सो दैट वुड बी गुड for the company and for the board. So technical firm must have some technical experts and vice versa, that is non-technical firms must have some non-technical experts. Suppose एक technical firm है, कोई manufacturing company है, so obviously experience क्या होगा कि company ऐसे directors अपॉइंट करें कि जिनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज हो. सपोज एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, फॉर एग्जांपल टोयोटा कंपनी. सो टोयोटा के बोर्ड में ऐसे डायरेक्टर्स होने चाहिए कि जिनके पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो. अगर उसके पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं होगा, सो हाउ ही कैन वर्क फॉर द बोर्ड बेटरमेंट. तो वो किस तरह कंपनी की भलाई के लिए, कंपनी की बेटरमेंट के लिए काम करेगा. एंड सेम इज द केस विद द नॉन टेक्निकल कंपनीज. अगर एक सिंपली एक नॉन टेक्निकल कंपनी है, फॉर एग्जांपल एक कंसल्टेंट फर्म्स हैं, सो उसके मेंबर्स के पास must have some sort of experience in the field of consultancy. अगर उसके पास experience नहीं होगा, so how he can be a beneficial or how he or she can be fruitful for his board and for his company. Dear students, normally experts ये कहते हैं कि अच्छी टीम बनती है when you have a similar ratio of the technical as well as the non-technical experts. For example, Toyota company के board of directors में अगर सिर्फ technical experts हों, जिसमें डिज़ाइन से रिलेटेड एक्सपर्ट्स या जिसमें प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपर्ट्स हों, लेकिन नॉन टेक्निकल एक्सपर्ट्स ना हो मार्केटिंग के फील्ड से या फाइनेंस के फील्ड से, सो कंपनी गाड़ी तो बना लेगी, अब उस कंपनी की बिजनेस को मार्केट करना, उस कंपनी बिजनेस के लिए मार्केटिंग करना, वो किस तरह मुमकिन होगा.
So for that reason, the company must have some sort of non-technical experts like best marketers from the market. So technical experts गाड़ी की जो टेक्निकल साइड है उसको लुक आफ्टर करेगी, एंड जो नॉन टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो कंपनी की सेल्स और कंपनी की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है उसकी तरफ दे विल फोकस ऑन दैट. So according to expert opinion, in the board you must have the technical as well as non-technical experts in your board, and it's entirely the firm's decision. ये firm का decision होता है कि how much they want to retain the number of technical experts and the number of non-technical experts. A board with members having different background can also be beneficial for the firms. We have discussed कि अगर आपके board members के पास different backgrounds हैं, so वो उसके लिए beneficial होगा firm के लिए and company के लिए. Independent board. Another point about having a good board is that the board must be independent. There must be a high fraction of non-insiders directors for a good board. One of the board primary responsibility is to evaluate, compensate and possibly fire the CEO. But if the board consists of the following people: a friend of a CEO, a relative of a CEO, a business collaborator of a CEO. अच्छा बोर्ड वो होता है कि जो इंडिपेंडेंट हो, एंड कंपनी का बोर्ड इंडिपेंडेंट उस वक्त होगा जब उसके पास they have some certain number of independent directors in their board. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इफ यू लुक एट द वेस्ट, कि वेस्ट में जितनी कंपनीज हैं नॉर्मली दे ट्राई टू मेंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन देयर बोर्ड, एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस कि जितनी भी वेस्ट की कंपनीज हैं वो अच्छा काम कर रही है, उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ठीक हैं, कंपनी ठीक है, एंड यू कैन सी हंड्रेड्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज फ्रॉम द वेस्ट. ऑन द अदर साइड जितनी कंपनीज नॉर्मली ईस्ट की साइड से हैं, सो उसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इतना नहीं है. सो दिस इज अगेन वन ऑफ द मेन रीजंस कि वो इतना अच्छा ग्रो नहीं कर रही. सो बोर्ड के इंडिपेंडेंसी के लिए जरूरी है कि बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हों. लेकिन अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोर्ड के सीईओ का दोस्त हो या उसका रिलेटिव हो या उसका बिजनेस कोलैबोरेटर हो, सो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो डायरेक्टर्स कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट होगा, बिकॉज ही इज ऑलरेडी अ फ्रेंड ऑफ सीईओ. सो अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी में आता भी है, सो बिकॉज ऑफ हैविंग सम लिंक्स विद द सीईओ, मे बी द फ्रेंडशिप और मे बी द रिलेटिव, सो ऑब्वियसली वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सीईओ के डिसीजंस को फेवर करेगा. सो दिस इज द मेन रीजन कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को कंपनी में लाना इट्स वेरी वेरी क्रूशियल एंड डिफिकल्ट. एज वी हैव डिस्कस्ड कि कॉर्पोरेट लेवल में जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे को जानते हैं. पेप्सी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो कोका कोला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक दूसरे को जानते हैं. या अगर कोई ब्यूरोक्रेट है 21 ग्रेड का या 20 ग्रेड का,
सो ऑब्वियसली वो जितनी भी कंपनीज के सीईओज होते हैं, सो दे आर बेसिकली ऑफ द सेम लेवल, तो वो एक दूसरे को जानते हैं बिकॉज दे आर लिमिटेड इन नंबर्स. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ इस्लामाबाद. पाकिस्तान में जितने भी हाई लेवल के ब्यूरोक्रेट्स हैं और जितनी कंपनीज के सीईओज हैं, सो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम दे नो ईच अदर. एक सेक्रेटरी वो जो इस्लामाबाद में जो पेप्सी का कंट्री हेड होगा या कोका कोला का कंट्री हेड होगा, सो मोस्ट प्रोबेबली दे नो ईच अदर. सो अगर वो सेक्रेटरी साहब अगर पेप्सी के बोर्ड में एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं, सो व्हाट डू यू थिंक कि वो कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं? नहीं, बिकॉज ही इज ऑलरेडी अ फ्रेंड ऑफ सीईओ. सो इंडिपेंडेंट बोर्ड के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट, really very difficult to get a real independent director. So it's very difficult to find people who are entirely and unambiguously independent of the firm's management. जिस तरह हमने डिस्कस किया कि फर्म्स की मैनेजमेंट से हट के अगर आपको एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिलता है, so you are very lucky, your board, your company, your firm board is very lucky. लेकिन most of the time they all know each other. It is either friends or relatives. Small board. One of the main determinant of good board is that normally the experts they are of the opinion the board with fewer members might be a better board. कि जितना आपका बोर्ड छोटा होगा आप का बोर्ड उतना ही अच्छा होगा. बिकॉज टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रूथ. इस मुहावरे का मतलब यह है कि जितने ज्यादा लोग होंगे तो उनसे उतना ही अच्छा डिसीजन नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक कमरे में 50 लोग बैठे हैं एंड इफ यू जस्ट आस्क देम फॉर एन ओपिनियन और अ डिसीजन, तो हर एक बंदे की अपनी ओपिनियन होगी, हर एक बंदा अपना डिसीजन देगा. सो नॉर्मली इट्स वेरी हार्ड इन अ लार्ज बोर्ड और इट्स वेरी हार्ड विद द लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू गेट द एक्यूरेट decision. So that's why experts says कि कंपनी को छोटा या having fewer number of members maintain करने चाहिए in the board. Most of the researchers are thinking in the same way. Small boards are more effective than large boards. Researchers की यही ओपिनियन है कि स्मॉल बोर्ड्स ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है एज कंपेयर टू द लार्ज बोर्ड. सो अगर कमरे में बंदे ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट देयर ओपिनियन. लेकिन अगर उसी रूम में 2 या 3 बंदे हों या 4 बंदे हों, सो इट्स वेरी इजी टू गेट द ओपिनियन और टू गेट द सम सॉर्ट ऑफ रिजल्ट फ्रॉम देयर opinions. So in small boards, every individual will think extra responsibility on his or her shoulder and vice versa. तो अगर स्मॉल बोर्ड होगा, सो हर एक मेंबर और डायरेक्टर will think some extra responsibility on his or her shoulder. अगर लिमिटेड बंदे होंगे तो आप हर एक बंदा दे विल फील सम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स क्वाइट नेचुरल. जिस तरह कमरे में अगर 50 बंदे से अगर आप कोई ओपिनियन लेते हैं तो हर एक बंदा इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करता. लेकिन अगर कमरे में 2 या 3 बंदे हों एंड इफ यू जस्ट आस्क फॉर सम ओपिनियन फॉर सम एडवाइस, तो हर एक बंदा एक एक्स्ट्रा
रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करेगा. So with large boards it's very difficult to reach consensus and to get anything meaningful done. So large board के साथ ये बड़ा मुश्किल है कि आप किसी consensus किस रिजल्ट पे आप पहुंचे. So good for a goose, good for a gender. इस मुहावरे का मकसद ये है कि एक चीज अगर एक बंदे के लिए ठीक है तो हो सकता है दूसरे बंदों के लिए भी वही चीज ठीक हो. सो व्हाट इज गुड फॉर अ बोर्ड और फॉर अ फर्म मे बी और मे नॉट बी गुड फॉर अदर्स. सो अगर एक छोटा बोर्ड है जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स हैं तो हो सकता है वो बोर्ड उस कंपनी के लिए अच्छा काम कर रही हो, लेकिन हैविंग द सेम स्ट्रक्चर ऑफ बोर्ड इन अदर फर्म्स हो सकता है कि वो दूसरी कंपनी के लिए अच्छा ना हो या अच्छा हो भी सकता है. सो फॉर श्योर वी कैन नॉट से कि अगर आपके बोर्ड में 5 मेंबर होंगे तो वही 5 मेंबर या वही नंबर ऑफ मेंबर्स दूसरे बोर्ड के लिए भी अच्छा होगा. हो सकता है कि इसमें एक फर्म में लिमिटेड नंबर ऑफ बोर्ड अच्छा काम करें, हो सकता है कि दूसरे फर्म में लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स अच्छा काम नहीं करें. So what you will need, basically you need some large number of members in that board. Normally young growth oriented firms would be looking for more insiders, might be the best people to serve the board. Normally एक नई कंपनी में they are looking for inside directors. सो बिकॉज कि कंपनी नई है, सो जब एक नई कंपनी बनती है नए डायरेक्टर्स इनसाइड डायरेक्टर्स आते हैं तो वो कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत काम करते हैं एज कंपेयर टू द आउटसाइड डायरेक्टर्स. क्योंकि जो इंडिपेंडेंट या आउटसाइड डायरेक्टर्स होता है नई कंपनी में तो वो भी इतना केयर नहीं करता बिकॉज ही और शी थिंक्स कि भाई कंपनी नई है, ग्रो करेगी या नहीं करेगी. सो नॉर्मली एंड दिस इज क्वाइट नेचुरल कि जब एक नया कंपनी नई फर्म बनती है, जब नए बोर्ड में नए डायरेक्टर्स आते हैं, सो दे आर वेरी कीन एंड एंथुजियास्टिक टुवर्ड द फर्म परफॉर्मेंस. वो बहुत काम करते हैं. सो इन दिस केस एक नई कंपनी और इन्फेंट कंपनी में जो इनसाइड डायरेक्टर्स होते हैं वो ज्यादा मेहनत करते हैं. So larger or more diversified firms may need more directors, keeping in mind the scope of its operations. लेकिन जहां पर कंपनी बहुत बड़ी होती है, सो फिर उसके लिए you need some large number of board, large number of members or large number of directors to have a smooth working in the board. फिर आपका limited number of members से काम नहीं चलता because you have a very large operations in your business. So that depends कि कहाँ पे आपको limited number चाहिए, कहाँ पे आपको large number of members चाहिए, what are the areas or what are basically the field कि जिसमें you need some independent directors और कहाँ पर आपको dependent directors चाहिए. So it varies from business to business, from firm to firm. So who will take the decision? ये डिसाइड कौन करेगा? बेसिकली ये बोर्ड खुद डिसाइड करती है, लेकिन बोर्ड में ऑब्वियसली ज्यादा इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट का होता है. ऑल्दो वी हैव certain number of directors from the shareholder sides as well as independent directors, but the most important and crucial part that play is normally the directors from the management sides, because in one way or the other management
is on the driving seat. कंपनी की ड्राइविंग सीट पे मैनेजमेंट बैठी हुई, बिकॉज दे आर रनिंग द बिजनेस. सो नॉर्मली जो डायरेक्टर्स होते हैं फ्रॉम द शेयर होल्डर साइड एज वेल एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, उनका थोड़ा सा इतना फोर्स नहीं होता जितना कि डायरेक्टर्स फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड्स का होता है. सो द मैनेजर्स दे मे बी इन द बेस्ट पोजीशन टू पिक अ गुड बोर्ड, बट हिज सेल्फ इंटरेस्ट मे गेट इन द वे. फिर वही बात कि दे कैन टेक द गुड डिसीजंस बिकॉज दे नो एवरी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ देयर बिजनेस, कि बिजनेस ठीक है, अच्छा है, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो विद दिस व्यू दे कैन एडवाइज अ वेरी गुड बोर्ड. लेकिन अगेन वी हैव डिस्कस्ड अलॉट कि उनका सेल्फ इंटरेस्ट बीच में आ जाता है इफ दे आर नॉट गुड मेंबर्स. लेकिन अगर वो अच्छे मेंबर हैं सो फिर वो सिर्फ कंपनी का इंटरेस्ट देखते हैं, अपना इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट वो इतना नहीं देखते. एंड नॉर्मली जितनी भी अच्छी कंपनीज होती हैं उसमें जो इनसाइड डायरेक्टर्स होते हैं या डिपेंडेंट डायरेक्टर्स फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड्स, दे प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल, और बाकी बोर्ड उनको बहुत इंपॉर्टेंस और बहुत रिस्पेक्ट देते हैं. सो द फर्म आउटसाइड शेयर होल्डर्स दे कैन वोट on the board members and have no power in appointing directors directly unless they could make the majority. शुरू में हमने ये डिस्कस किया था कि शेयर होल्डर्स एनुअल जनरल मीटिंग होती है, दे बेसिकली इलेक्ट और सेलेक्ट द डायरेक्टर्स. लेकिन सारे शेयर होल्डर्स डिसीजन मेकिंग में हिस्सा नहीं ले सकते. हर एक कंपनी की एक स्पेसिफिक परसेंटेज होती है. अगर आपके पास इतने परसेंट ऑफ शेयर्स होंगे, इतने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, तो कंपनी इट कुड बी अदर 5%, 2%, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. तो फिर कंपनी आपको इनवाइट करती है, बोर्ड आपको इनवाइट करता है. सपोज अगर एक कंपनी में सपोज इफ आई एम हैविंग 5% ऑफ शेयर्स इन एनी कंपनी, सो जितनी भी मीटिंग्स होती हैं तो मुझे कंपनी की तरफ से इनविटेशन आती है कि आप मीटिंग में आए एंड दिस इज द एजेंडा ऑफ द मीटिंग, कि हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. फॉर एग्जाम्पल कि हम नए डायरेक्टर्स लेंगे, हम कॉम्पनसेशन का जो उसको रीस्केड्यूल करेंगे एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. सो सारे शेयर होल्डर्स को, बिकॉज कंपनी में समटाइम्स यू मे हैव मिलियंस ऑफ शेयर होल्डर्स, हजारों लाखों के हिसाब से शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी में. सो सबको बुलाना, सबको डिसीजन मेकिंग में या डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट में इट्स नॉट पॉसिबल. जब तक आपके पास मेजर नंबर ऑफ शेयर्स नहीं होते तब तक कंपनी आपको इनवाइट नहीं करती फॉर द डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट. सो द फर्म आउटसाइड शेयर होल्डर्स दे कैन वोट ऑन द बोर्ड मेंबर्स बट हैविंग नो पावर इन अपॉइंटिंग डायरेक्टर्स डायरेक्टली अनलेस they could make the majority. So can good boards leads to better firms performance? क्या हम ये कह सकते हैं कि जो अच्छा बोर्ड होगा, मे बी स्मॉल हो या बड़ा हो, ठीक है ना, मे बी हैविंग लार्ज डिपेंडेंट डायरेक्टर्स और लार्ज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ठीक है. सो सपोज अगर इफ इट्स अ गुड बोर्ड, सो इज देयर एनी गारंटी कि वो फर्म अच्छा काम करेगी? द क्वेश्चन इज नो. देयर इज नॉट क्लियर दैट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन बोर्ड क्वालिटी एंड फर्म्स परफॉर्मेंस. ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आपका अच्छा बोर्ड होगा तो आपकी फर्म बहुत अच्छी होगी. देयर इज अ चांस कि अच्छा बोर्ड अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, लेकिन समटाइम्स एक अच्छा बोर्ड एक कंपनी को डुबो भी सकता है. एंड वी हैव
many examples in the corporate sector कि बड़ी अच्छी अच्छी फर्म्स थी, जिस तरह वर्ल्डकॉम एक बहुत बड़ी कंपनी थी, बहुत उनका टर्नओवर था एटसेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन बहुत बड़े फ्रॉड के बाद कंपनी आखिर में काफ़ी लॉस में चली गई. सो वी कैन नॉट से फॉर श्योर कि भाई बोर्ड अच्छा होगा तो कंपनी कभी नहीं डूबेगी. नो, हो सकता है एक छोटा बोर्ड हो लेकिन वो इतनी मेहनत करें कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा निकले और कंपनी बहुत ग्रोथ दिखाए. ऑन द अदर साइड यू मे हैव अ वेरी लार्ज बोर्ड, सम सॉर्ट ऑफ गुड बोर्ड, लेकिन हो सकता है कि वो कंपनी के लिए अच्छा ना हो या कंपनी की परफॉर्मेंस उससे अच्छी ना हो, बिकॉज हर एक इंडिपेंडेंट हर एक जो डायरेक्टर है, इफ इट्स द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और डिपेंडेंट डायरेक्टर, वो अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं कर रहा. बोर्ड तो अच्छा है, एक्सपर्टीज भी हैं, एक्सपर्ट्स भी उसमें उनके पास हैं, एटसेट्रा एक्सेट्रा, हैविंग टेक्निकल एक्सपर्ट्स, हैविंग नॉन टेक्निकल एक्सपर्ट्स, लेकिन उनका जो म्यूचुअल कोलेबोरेशन है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, जो टीम वर्क है, वो नहीं है. सो ऑल्दो इट्स अ गुड बोर्ड अपैरेंटली, जाहिरन तो वो अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन दैट डज नॉट लीड to have increase in the firm performance. So उससे फर्म की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती. लेकिन अगर एक बोर्ड अच्छा है, we have seen many examples in the world कि जिसमें एक बोर्ड अच्छा है, जिसमें जिसने अपनी फर्म की परफॉर्मेंस को इंक्रीज भी कर दिया है. So we cannot say 100% कि अच्छा बोर्ड अच्छी परफॉर्मेंस देगा. दे भी सकता है. वी हैव मेनी एग्जाम्पल्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल और मेनी अदर एग्जाम्पल्स जिसमें अच्छा बोर्ड भी है एंड दे आर परफॉर्मिंग वेल. बट वी हैव सीन सर्टेन केसेस कि जिसमें अच्छा बोर्ड तो है, यू हैव अ गुड बोर्ड, लेकिन वो फर्म की परफॉर्मेंस को इंक्रीज नहीं कर सकता या नहीं कर सका. सो नॉर्मली बोर्ड्स मे बी इफेक्टिवली रिएक्टिव एंड मे नॉट बी इफेक्टिवली प्रोएक्टिव. नॉर्मली बोर्ड इसलिए ज़्यादा फर्म की परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं कर सकता कि इट्स रिएक्टिव एंड मे नॉट बी इफेक्टिवली प्रोएक्टिव. नाउ व्हाट इज रिएक्टिव और व्हाट इज प्रोएक्टिव? रिएक्टिव मीन्स कि जब कोई इंसिडेंस हो जाता है तो उसके बाद जब आप काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव अप्रोच. फॉर एग्जाम्पल, कंपनी की शेयर प्राइस डाउन हो गई है. अब कंपनी का बोर्ड अपना काम शुरू करता है एंड दे सिंपली उसकी ऑडिट करते हैं कि व्हाट वर द रीजंस कि हमारी कंपनी की शेयर मार्केट में गिर गई है. दैट इज कॉल्ड द रिएक्टिव अप्रोच. नाउ व्हाट इज प्रोएक्टिव अप्रोच? प्रोएक्टिव अप्रोच इज अगेंस्ट द रिएक्टिव अप्रोच. इन प्रोएक्टिव अप्रोच में अच्छा बोर्ड पहले से ही ऐसे स्टेप्स लेता है कि कंपनी की शेयर प्राइस डाउन ना हो. सो रिएक्टिव अप्रोच में जब शेयर प्राइस कम हो जाती है तो बोर्ड अपना काम शुरू कर देता है कि भाई क्या वजह है मार्केट में, व्हाट वर द रीजंस कि हमारी शेयर प्राइस कम हो गई. प्रोएक्टिव अप्रोच में ये होता है कि कंपनी शेयर प्राइस गिरने से पहले ही ऐसे स्टेप्स लेती है कि शेयर प्राइस कम ही ना हो. सो अच्छा बोर्ड वो होता है जो प्रोएक्टिव हो. अच्छी कंपनी वो होती है जिसकी स्ट्रेटजीज प्रोएक्टिव हो, बजाय इसके कि कंपनी की सेल्स जब गिरती है तो फिर कंपनी अपनी मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज अप्लाई करती है टू इंक्रीज द सेल्स. दैट इज रिएक्टिव अप्रोच. सो अच्छी कंपनी पहले से ही कंपनी की जो सेल्स है उसको गिरने नहीं देती एंड दे टेक सम सॉर्ट ऑफ प्रोएक्टिव अप्रोच और स्टेप्स सो दैट कि कंपनी की जो प्राइस है या सेल्स है वो कम ना हो. सो अच्छा बोर्ड वो होता है जो नॉर्मली दे टेक द प्रोएक्टिव अप्रोच कि कंपनी की अगर हालत खराब होने से पहले ही ऐसे स्टेप्स लेती हैं कि कंपनी की हालत खराब ही ना हो.
So it depends either insider or outsiders directors. Just we have discussed कि sometimes अगर आपके पास आपके इनसाइड डायरेक्टर्स आपके लिए अच्छे होते हैं बोर्ड के लिए, समटाइम्स यू मे हैव सम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स that is good for your for the board and for the firm's performance. For example, committee that determine CEO compensation and are responsible for the firm's audit may best be served by outsiders. For example, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कॉम्पनसेशन जो कमेटी होती है जिसमें आपने सीईओस को सीईओ की कॉम्पनसेशन, बाकी डायरेक्टर्स की कॉम्पनसेशन, ये इश्यूज आपने डिस्कस करने हैं. सो फॉर दैट रीजन यू नीड द आउटसाइड डायरेक्टर और द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बिकॉज कि अगर आप इनसाइड डायरेक्टर लेंगे फॉर दिस मैटर तो ऑब्वियसली वो अपने सीईओ को कुछ फेवर करेगा या अपने जो फेवरेट डायरेक्टर्स हैं उनकी कॉम्पनसेशन ज़्यादा कर सकते हैं, उनके लिए बोनसेस कर सकते हैं. सो जहाँ तक पैसे का रिम्यूनरेशन का कॉम्पनसेशन का ताल्लुक है, सो इन दैट कमिटीज यू नीड सम सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. But committee that make firm financial and long-term investment decisions may served best by insiders. लेकिन वो कमेटी जिसने फर्म के लिए फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, जिसने फर्म के लिए ऐसा डिसीजन लेना है जिसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है, सो नॉर्मली इस किस्म की कमेटीज में यू नीड सम इनसाइड डायरेक्टर्स, बिकॉज इनसाइड डायरेक्टर्स को पता होगा कि अगर हमने गलत डिसीजन लिया तो कंपनी डूब जाएगी और वो फारिग होके अपने घरों को चले जाएंगे. ह्यूज फाइनेंशियल डिसीजन में अगर आप इनसाइड डायरेक्टर्स को इन्वॉल्व करेंगे तो वो दे विल नॉट केयर कि अगर कंपनी डूबती है या नहीं डूबती. फॉर एग्जांपल, अगर उनके डिसीजन से कंपनी को लॉस होता है या कंपनी डूबती है तो ही इज फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी, तो वो आपकी कंपनी डूब जाएगी, वो वापस अपनी पुरानी सीट पे या पुरानी जॉब पे या जिस कंपनी में ऑलरेडी वो काम कर रहा है वहां पे चला जाएगा. सो फाइनेंशियल डिसीजन में नॉर्मली यू नीड सम इनसाइड डायरेक्टर्स टू हैव अ सॉर्ट ऑफ ऑनेस्ट डिसीजंस फॉर द कंपनी. सो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स विद टुडेज बोर्ड, कि पूरी कॉर्पोरेट सेक्टर में जितने भी कंपनीज के बोर्ड हैं उसमें जो मेन प्रॉब्लम है दैट इज बेसिकली अगेन द रिलेशनशिप ऑफ द सीईओ एंड द डायरेक्टर्स. इट कैन बी डिपेंडेंट डायरेक्टर्स एज वेल एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, because CEO basically play the most important, the most crucial part, because he is basically head of the management team. So he is very respected. उसकी बड़ी रिस्पेक्ट होती है किसी भी बोर्ड में, because CEO साहब अपनी मैनेजमेंट को चलाते हैं. अगर कंपनी का CEO खुश होगा, if he or she is happy with this company, so obviously वो अपनी टीम को कंपनी की ग्रोथ के लिए चलाएगा. So if CEO is not happy with the company, तो obviously CEO अपनी मैनेजमेंट जो टीम है उसको कंपनी के लिए सही नहीं चलाएगा. So obviously CEO की बड़ी रिस्पेक्ट होती है, लेकिन we cannot deny the involvement of his personal interest in the company, कि CEO साहब कभी कभार अपनी जो उसकी पोजीशन होती है उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है by having many relationship with the directors. So one of the main functions of the board is to evaluate top management, especially the CEO. However, for many firms, the board chairman is also the firm's CEO. Most of the outsiders have some personal tie to the CEO. So
जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया कि अच्छे बोर्ड के लिए ज़रूरी है कि आपके पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो, आउटसाइडर्स डायरेक्टर्स हो, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट रियल एंड unambiguous dependent independent directors, because they all know each other. So जब एक CEO साहब का दोस्त आपकी कंपनी में एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आएगा, सो वो किस तरह इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है? ही इज नॉट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ही इज बेसिकली द फ्रेंड ऑफ द CEO, which is very crucial and sort of alarming situation for the board and for the company. The directors commonly, the outsiders, do not have a significant vested interest in the firm, having little or no stock. जिस तरह हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था एग्जेक्टिव कॉम्पनसेशन में कि एग्जेक्टिव्स को मुख्तलिफ किस्म की या डायरेक्टर्स को मुख्तलिफ किस्म की इंसेंटिव्स मिलती हैं इन द शेप ऑफ स्टॉक्स, ताकि उसका इंटरेस्ट और कंपनी का इंटरेस्ट मैच करे. लेकिन जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है उसका नॉर्मली ही इज फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आइदर हैविंग वेरी लो स्टॉक और नो स्टॉक. तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पास या तो नंबर ऑफ शेयर्स होते नहीं हैं, अगर होते हैं तो बहुत मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स. सो ऑब्वियसली ये उसका इंटरेस्ट टुवर्ड द बोर्ड कम कर देती है. सपोज इफ आई एम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द फर्म, इन एनी फर्म, सो माई मेन फोकस इज ये है कि मैं जिस कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहा हूं, मेरा मेन फोकस ये है. सो मैं दूसरी कंपनी में जाके वहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप है मेरे पास. सो फॉर मी दैट कंपनी इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. सो मेरा इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली उतना नहीं होगा जितना मेरे अपनी पेरेंट कंपनी के साथ है या जहां पे मैं ऑलरेडी एक जॉब कर रहा हूं. सो डायरेक्टर्स independent do not have a significant vested interest in the firm, holding little or no stocks. All are directors capable of providing the time and expertise required to fully understand the major operating and financial decision of the firm. Most directors have their own highly demanding full-time jobs, so how to cope with? यही हमने अभी डिस्कस किया कि एक डायरेक्टर जो ऑलरेडी एक जगह पे फुल टाइम जॉब कर रहा है एज अ सेक्रेटरी, एज अ डायरेक्टर इन अदर कंपनी, सो वहां पर उसकी फुल टाइम जॉब है, और तो हाउ ही विल गिव फुल अटेंशन टुवर्ड योर कंपनी एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. इट्स वेरी क्रूशियल एंड critical. Some directors simply don't have the expertise to be a board member. कभी कभार बोर्ड में ऐसे डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट आ जाते हैं जिनके पास एक्सपर्टीज ही नहीं होती, और वो किस तरह आते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ द CEO इन्फ्लुएंस. CEO इन्फ्लुएंस करता है कि फला बंदे को एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप अपॉइंट करें, तो बाकी बोर्ड भी चूंकि CEO की बड़ी रिस्पेक्ट होती है वो मान लेते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सर्टेन एक्सपर्टीज तो बोर्ड जो है वो मजबूर होता है, लेकिन वो यूजलेस होता है फॉर द बोर्ड. सम बोर्ड्स आर सिंपली लार्ज एंड डिफिकल्ट टू एक्टिवली इन्वॉल्व देम. कुछ बोर्ड काफी बड़े होते हैं तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को इतना इफेक्टिवली इन्वॉल्व नहीं करते इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बिकॉज बोर्ड को भी पता होता है कि ऑल्दो वी हैव अपॉइंटेड हिम और हर एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, लेकिन वो दे कंसिडर हिम और हर एज अ स्ट्रेंजर, कि कंपनी का बाहर का बंदा है, हम आपस में ही मिलके कुछ कर लेते हैं. Some directors might not be truly independent
they might be too busy, as we have discussed कि independent directors खुद बहुत busy होते हैं, so we can say that they may not be truly independent directors. Dear students, this is the end of this topic, that is Board of Directors. Let's have a quick review about this topic. A Board of Directors is a body of elected or appointed members who jointly oversee the activities of a company. Board of Directors कंपनी की जितनी एक्टिविटीज होती हैं उसको ओवरसी करते हैं. Board of Directors are appointed at the public annual general meeting of shareholders. Normally Board of Directors की अपॉइंटमेंट होती है एनुअल जनरल मीटिंग शेयर होल्डर्स की, और उसमें सारे शेयर होल्डर्स को इनवाइट करना कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है. ओनली दोज हु हैव द मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स. टाइप्स ऑफ बोर्ड are depending upon the company status as well as the territory where the company prevail. Normally we can see a one-tier board in common law based societies like US and UK, and two-tier board in civil law based societies like Germany, etc. So Board of Directors functions involve to hire, evaluate and even fire the top management, to vote in support and against the major proposals as well as the financial decisions. Board of Directors का मेन काम ये है कि वो टॉप मैनेजमेंट को evaluate करें, उनको हायर भी कर सकते हैं, and they can even fire the top management, and they can support some major proposals as well as financial decisions. In short, the main function of the Board of Directors is to take care of the shareholders' money, to take care of their investment. But the most important factor is to think a lot before selecting the board. Then we discuss some legal status of the Board of Directors. Normally many countries law, they don't require a Board of Directors for a firm, but there are many other countries जहाँ पर फेडरल लॉ की रिक्वायरमेंट होती है. लेकिन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ये चाहती हैं कि हर एक फर्म या कंपनी का अपना एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, जो कि फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी और शेयर प्राइस के लिए वो काम करें. एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट बी लॉयल एंड फेयर फॉर हिज पर्सनल प्रोफेशनल करियर एज वेल एज फॉर द कंपनी. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करेगा, सो जो डिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, इनसाइड डायरेक्टर्स हैं, तो उनकी ग्रोथ के लिए भी ठीक है. They can simply use that success in their resumes, in their CVs, and they can go for some more projects or jobs in some other board or companies. जो independent directors हैं, उनकी personal professional growth के लिए भी loyalty और fairness ज़रूरी है. Then we discuss some ethics in corporate world कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो बिजनेस एथिक्स है उसका भी ख्याल रखना चाहिए, जिसमें एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस, ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, करप्शंस एंड द मोरल ऑब्लिगेशंस. देन वी डिस्कस्ड सम कमेटीज, जिसमें जो टॉप की कमेटी होती है दैट इज नॉर्मली कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसमें नॉर्मली जो चेयर करता है दैट इज द CEO ऑफ द कंपनी and some major shareholders. And the finance committee जो कंपनी की जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं उसको ओवरसी करता है. एंड द पब्लिक रिलेशन कमेटी. देन वी हैव बोर्ड सब कमेटीज, जिसमें ऑडिट कमेटी आती है, जो कंपनी में जितनी भी ऑडिट रिलेटेड मैटर्स होती हैं उसको
टेक केयर, उसको ओवरसी करती हैं। स्पेशली जो एक्सटर्नल ऑडिटर आता है उसकी एग्जामिनेशन और उसको एक किस्म का चेक होता है ऑडिट कमेटी की तरफ से। देन वी हैव कॉम्पनसेशन कमेटी, नॉर्मली कि जो जितनी भी कॉम्पनसेटेड रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो कॉम्पनसेशन कमेटी ही डिस्कस करती हैं। देन वी हैव नॉमिनेशन कमेटी कि जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती है दैट इज थ्रू द नॉमिनेटिंग कमेटी। नॉमिनेटिंग कमेटी का काम बेसिकली ये होता है कि वो जितनी भी एप्लीकेशंस आती है बोर्ड में उसको वो चेक करते हैं कि विच मेंबर और विच पर्सन इज एलिजिबल फॉर द इनसाइड डायरेक्टरशिप एज वेल एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप। सो फिर वो फाइनल करके आगे भेजते हैं और फिर उसी पे वोटिंग होती है एंड दैट्स हाउ द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड। देन वी डिस्कस कि इन द पास्ट देयर वाज basically less interest toward the directors in the board or in the board as a whole, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स आहिस्ता आहिस्ता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इम्पोर्टेंस बढ़ती गई, जिससे ये हुआ है कि मुख्तलिफ टेक ओवर्स आहिस्ता आहिस्ता वो कंपनीज का कम होना शुरू हुआ है, बिकॉज बोर्ड भी अच्छा काम कर रहे हैं। नाउ द मैनेजमेंट इज वर्किंग वेरी वेल, सो दैट हैज ऑटोमेटिकली रिड्यूस द गवर्नेंस प्रॉब्लम्स, सो द कंपनी आर रनिंग smoothly. We discussed then what is a good board. A board must be having some experienced members, having different background, could be technical as well as non technical. In the board, for a good board, it must be independent board, and for its independency you must have some sort of independent directors in your board. Some experts says that a good board is always having a limited number of members, but that is debatable. There are certain boards के जिसमें आप limited numbers नहीं रह सकते if it's a very large firm जिसकी operations बहुत बड़ी है, so for that you need some more directors in your firm. Then we discussed कि one sort of board may be or may not be good for another firm. Then we discussed that we can say that a good board can increase the firm performance, but we cannot 100% guarantee this, that the good board will increase the firm performance. We have seen many examples in the corporate world कि अच्छा बोर्ड होता है लेकिन फर्म की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, जिससे क्या होता है कि कंपनी डूब जाती है. So there is not any positive relationship between the board quality and firm performance. Normally the board are reactive, not proactive. Normally board उस वक्त हरकत में आता है जब कोई इंसिडेंस हो जाता है, लेकिन अच्छा बोर्ड वो होता है जो पहले से ही किसी किस्म का इंसिडेंस या किसी किस्म की हैपनिंग्स से पहले ही वो अपने स्टेप्स ले लेता है, और दैट्स हाउ दे कैन सेव देयर कंपनी और एनी सॉर्ट ऑफ डिक्लाइन. Sometimes inside directors are good for board, like infant or new firms, or even the firm has to make any huge financial investment decision, and sometimes outside directors. For example, when audit as well as compensation matters are required. So some potential problems with today's board is we have seen कि जितने भी आउटसाइड डायरेक्टर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम दे हैव अ सर्टेन रिलेशनशिप विद द टॉप मैनेजमेंट, स्पेशली विद द सीईओ ऑफ द कंपनी. सो इफ द डायरेक्टर कमिंग इनटू योर बोर्ड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, if he or she has some links with the CEO of the company, if he or she is a friend of the CEO, so how you can expect him or her to act as an independent director for your firm? वो तो फिर इंडिपेंडेंट रहा ही नहीं, वो तो CEO साहब का फ्रेंड या रिलेटिव है.
And outside directors, full motivation is still a question mark for firm's board. Outside director, because he is from outside of the company and having some many other जो बिजी शेड्यूल होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का, सो उसका फुल मोटिवेशन बोर्ड के साथ it's again a question mark. So inexperienced as well as busy outside directors are fruitless for the board. So inexperienced as well as busy जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के लिए ऑटोमेटिकली फ्रूटलेस हैं, फ्रूटफुल नहीं है, इतना कंपनी के लिए ठीक या फायदेमंद नहीं है. So this is the end of our today's lecture. Allah Hafiz.